चलो. So if you understand, there are a few things that we must know. Number one, because we are talking about this data could be in form of charts, bar, pie, line graph, paragraph, two-way table. There are various ways in which a data would be given to you. It is important to understand what is the title of the chart. So let's say the data is in form of a coordinate plane, 2D form में आपको data दिया है. So there would be some heading to this data. Please note what is this heading. This is sales, carbon emission, people's salary, growth in height, marks, admission data. क्या है? Note that. The second thing that you'll have to note is what is there on the x-axis. X-axis पे क्या दिया है? Understand whatever quantity is given to you. Is it sales? Is it income? Is it year? Whatever it is. And what is the unit of this quantity on the x-axis? आपको ये दोनों चीजें नोट करना जरूरी है when it comes to data handling. So this is x-axis. Coming down to y-axis, same thing. Y-axis पे भी identify and understand what is the quantity given. Sales, figures, revenue, and what is the unit of that quantity. Millions of dollars, kg, time period, centimeter, meter, whatever it is, please note that. So these are few things that you must know. Along with this, also try and identify from the data, if possible, is there a trend? Can you see a trend? Is it a growing trend or a seasonal trend or a downward trend? See if visually possible. जरूरी नहीं हर बार होगा, but many a times by looking at this data, you will be able to see that there is some trend. It could be going up, coming down. There could be some cycles involved. कभी ऊपर, कभी नीचे at an equal interval. So depending upon how this data is spread, आपको कुछ यहाँ पे trend दिखेगा. So when we are talking about data handling, graphs and charts are very, very common tools that is used to talk about the data. तो कोशिश करिए कि आप ये सारी चीजें नोट कर सकें. The next thing that you should note is, especially if it is a graph, is there something that is related to slope that you can conclude? If it is a line, तो आप ये कर पाएंगे. Ask yourself, क्या कोई slope दिखता है क्या? Is it a growing positive slope वाला data है? नीचे आ रहा है, negative slope वाला data है, positive slope है या negative slope है? If it is a line graph, I will want you to also make a mental conclusion about what is the slope like. How is that data clustered, structured, and what is the slope like? कई बार है ना, आपको एक पर्टिकुलर डेटा दिखेगा जो बाकी डेटा सेट से बहुत अलग बिहेव कर रहा है. We'll call such data set as outlier. हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे. So it may so happen कि कोई एक डेटा पॉइंट either at a lower end or at a higher end or some other point पे, it is very different than the general trend of the data, than the cluster of the data. Such data point will be called as outlier. तो ये भी अगर आपको ग्राफ में विजुअली दिखता है, मार्क इट अप, इसको भी आप नोट कर लो. So remember, all these things should be done when you are inspecting and you have not started solving the question. जो आपने sign out, number one, you have come late to the class. This is not appreciated at all. ऑनलाइन आप लोगों को टाइम पे आना है, फिजिकल तो टाइम पे आना ही है, ऑनलाइन में भी आपको टाइम पे ही आना है. I cannot allow you that. And number two, your video is off. Please put it on. Don't be late. Next Sunday we have Diwali, so you guys have a off. उसके बाद वाला Sunday again you have a class with me, which will be your last mathematics class, which is chapter 9. तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये दोनों क्लासेस Zoom पे हैं, आज वाला and 19th November वाला. So वो भी Zoom पे ही होगा, like we are meeting today. And make sure you are on time. I will not allow you in case you guys get late. I will not allow you. ध्यान रखना आप लोगों को टाइम पे आना. तो ये basic things after you have noted about the data, I think now we are good कि ये basic चीजें किसी भी data का जो हमको मिला है
हम उसको नोट करें। टाइटल क्या है, एक्स वाई एक्सिस क्या है, उसमें कोई ट्रेंड है क्या, लाइन है तो स्लोप का ट्रेंड क्या है, एंड इज देयर अ डेटा विच बिहेव्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द गिवन सेट। ये कुछ विजुअल इंस्ट्रक्शंस हो जाने। Now I will come down to a special type of graph called as scatter plot. Scatter plot. ये समझते हैं क्या होता है। A very very common, कम से कम 1 to 3 problems you can expect on scatter plot on your SAT paper. A very common tool that you will see that these guys use. So let's try and understand scatter plot. Scatter plot would generally be a two-dimensional data over a plane, over an XY plane, sorry, over an XY plane, where you will see that data is given to you in some dot form. वो डेटा आपको जो दिया है वो कुछ इस तरह से वो डेटा दिया हुआ है, let's say. So a plot of data which is scattered on a 2D plane is called scatter plot. ये समझ में आया? तो corresponding हर डॉट का एक x वैल्यू है, उस corresponding हर डॉट का एक y वैल्यू है, and you get a data. Now this could be sales of vehicle, जैसा मैंने बताया, this could be number of telephone lines in a district, this could be let's say growth or yield or cultivation that somebody has done on a field and over a month उसको क्या output मिल रहा है. So it could be any data. So if you look at this, such kind of data would be called as scatter plot. Scatter plot में एक जो चीज बहुत important है and you must know about that is called as line of best fit. मैंने गलत color use करता हूँ. So it's called as line of best fit. ये क्या होता है? line of best fit. सुना है क्या आपने ये word कभी? हाँ आदि? No, sir. So let's try and understand Shaina and Adi. वो अच्छा जहाँ because you are only two of you and me, हम 3 लोगों की क्लास है ये बस, तो feel free to stop me, interrupt me, and we will discuss. So this is a very important concept with respect to scatter plot. Line of best fit means that let's say this is the data that I get. मान लो कुछ ऐसा डेटा है. ये डेटा को देख के क्या आप मुझे इसका ट्रेंड बता सकते हैं? What is the trend like of this data? Let's say if this is the data set. कैसा ट्रेंड है इसका? बोलो एनीथिंग दैट यू थिंक ये देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है. व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट द डेटा सेट और ट्रेंड ऑफ डेटा सेट? क्या प्रिडिक्शन हो सकता है आपका? बोलिए. It's scattered. ओके, बट दैट कैन नॉट बी अ It's like प्रिडिक्शन. increasing, like positive. Yes, Increasing. yes, absolutely. Now if you look at this data, एक चीज जो समझ में आ रही है, as you increase x, y is going to increase. So this is an increasing trend, largely an increasing trend. और अगर ये कोई लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन होनी चाहिए, है कि नहीं? As you increase x, y is also increasing. So when I say line of best fit scatter plot के अंदर, it basically means a line that is representative. This line is representative of the data. ये पूरे डेटा सेट का ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है. जरूरी नहीं है that all points would be on line. There could be some points on the line, but there could be other points which are above the line. There could be some points which are below the line, such that ये एक estimated line भी बोलते हैं इसको. ये line of estimation भी है. आई एम एस्टिमेटिंग, अगर मुझे मान लो कोई ये बोलता है कि x की इस वैल्यू पे बताओ y का क्या प्रोजेक्टेड वैल्यू है, आई कैन डू दैट बिकॉज दिस लाइन इज अ लाइन ऑफ एस्टिमेशन और लाइन ऑफ बेस्ट फिट. Okay, this line may be given, may not be given in the data set, but line of best fit is the line which is a representative line, estimated line, approximation line.
जिसको मैं यूज करके आगे की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ पॉइंट्स इस लाइन को ऊपर खींच रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इस लाइन को नीचे खींच रहे हैं, सच दैट इट इज एट दिस पोजीशन। जैसे एवरेज निकालते हैं ना क्लास का, आई हैव 15 स्टूडेंट्स इन क्लास, दे राइट अ टेस्ट, और मैं फिर एक वैल्यू निकालता हूं एंड आई से मान लो एवरेज इज 15, so it means there could be some students who are at 15, there are some students below 15, there are some students above 15, says that class ka average is 15. So what is this average? This is representative score for the class. तो उसी तरह से ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है फॉर स्कैटर प्लॉट, विच इज रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन, which is possibly a line which best fits the data if I can put it in a line form. बोलिए, any questions you have? और ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं कर रहा हूँ? तो ये लाइन को यूज करके मैं आगे की फ्यूचर वैल्यूज निकाल सकता हूँ जो इस डेटा में दिख नहीं रही है, क्योंकि मैं लाइन है ये, तो आई कैन जनरेट एन इक्वेशन फॉर दिस। और अगर मैं इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं तो मतलब ये लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y is equal to mx plus c, where m becomes the slope of line, c, what is c? Y intercept. y इंटरसेप्ट। तो लाइन को पीछे लेके आऊंगा एंड आई से ये रहा भैया मेरा c। तो मुझे m पता है स्लोप, मुझे c पता है y इंटरसेप्ट, आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, get a corresponding y, so I can get a predicted value, estimated value. बोलो, any doubts that you have here? This is about scatter plot and line of best fit. ध्यान रखना कि ये बहुत कॉमन टाइप है जो कि एसएटी में आता है। तो एक क्वेश्चन करें इस पे समझने के लिए। चलो, I'll share. I don't know if it's there in your book. I'm not sure. So I've got an SAT problem from the official guide just to help you out and understand. कैसे शेयर होगा? Hold on. Here it is, and here I go. Can you see my screen? Can you see this problem of raspberries? ये दिख रहा है क्या? Yes, Okay. sir. ठीक है. So let's go through this data. Let me give you 1 minute का time so that you absorb what is given. Just observe and absorb and understand जो भी आपको समझ में आ रहा है. And once you have understood, feel free and help me understand what is that you have understood. क्या observe कर रहे हो आप इसमें? There is no heading as such, but y-axis में दिया है price per pint in dollars, x-axis पे दिया है number of pints sold, then there is some data which is scatter plot के form में, एक line of best fit भी दिया हुआ है और उसका equation भी दिया हुआ है, y is equal to 233 minus 32x, and then there is a description. I'll read it for you. A grocery store sells pints of raspberries and set the price per pint each week. The scatter plot above shows the price and number of pints of raspberries sold for 19 weeks. तो अब वो 19 weeks मतलब 19 dots होनी चाहिए, तो वो गिनने की जरूरत नहीं होंगे 19 dots. Along with a line of best fit for the data and an equation for line of best fit. बोलो, ये डेटा समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. So let's go to some questions now. मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूं and you guys tell me क्या लगता है क्या आंसर होगा. For how many of 19 weeks shown was the number of pints of raspberry sold greater than number predicted by line of best fit? क्या आंसर लगता है? What do you think is the answer? बोलो.
बोलो भाई। क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? 19 वीक्स का डेटा है. हाउ मेनी वीक्स एक्चुअल सेल्स वाज मोर देन द प्रेडिक्टेड सेल्स? सेल्स नहीं, सॉरी सॉरी, सेल्स नहीं, सेल्स बोल रहे हैं क्यों? हाँ, यस. नंबर ऑफ पिंस ऑफ raspberry sold greater than predicted by line of best fit. बोलो. कुछ तो आंसर देना पड़ेगा ना. Try. In case you don't make it, of course I am there to help you. बोलो. China, what are you waiting for? I'm trying to understand. Okay. So is there a roadblock? कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? डेटा Like समझ great, में आ गया? like the 19 weeks greater than the number. So how many weeks data is there? You have understood what's happening here? Yeah, it's decreasing as the prices are increasing. Okay, that is one observation. What else? What else? It is decreasing. As you increase the price, number of pins sold is decreasing. एक तो ये trend समझ में आया. For each week, प्राइस क्या था और कितने पिंस सोल्ड किया वो भी डेटा दिया हुआ है. प्रिडिक्टेड वैल्यू हमेशा लाइन पे मिलती है, एक्चुअल वैल्यू वो डॉट्स है. ठीक है. और बोलो भाई आदि. तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. डेटा समझ में आ गया? ठीक है. तो मुझे समझाओ ये वाले डॉट का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस डॉट रिप्रेजेंट? तो 2.5 रुपीज में अगर प्राइस रुपीज, होता पिंस रुपीज, का, रुपीज. सॉरी, डॉलर. फिर टू क्या समझ पॉइंट में आया? तुमको तो डेटा ही समझ में नहीं आया. तो अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप करूंगा, लेट्स से आई ड्रॉप अ स्ट्रेट लाइन एज स्ट्रेट एज आई कैन. ये कुछ बीच में आ रहा है. $2.75 जिस वीक में आपने प्राइस रखा था, उस समय यू कुड सेल समथिंग लाइक 166, 165, 167 पिंस. बोलो साइना. इज Yes, इट sir. मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है. अब आगे. Now they are asking for how many of the 19 weeks, total 19 data. Number of pins sold were greater than, Sir, sorry, 8. yes, answer is 8, greater than predicted by line. तो ये लाइन को एक्सटेंड करते हैं. जो भी वैल्यू लाइन के ऊपर होगी वो प्रिडिक्शन से ज्यादा सेल हुआ है. तो डेटा पॉइंट काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 weeks when the prices were higher than as predicted by line of best fit. बोलो ये समझ में आया? Okay, let's come down to the next problem. What is the best interpretation of slope of line of best fit? स्लोप का इंटरप्रिटेशन दीजिए इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का. इक्वेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा. लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. गिव मी द इंटरप्रिटेशन.
You have to describe it to me. What is the slope of this line? चलो ये बताओ. Slope -32. -32. So how will you give interpretation of -32? Give me interpretation of -32. So interpretation as a Define. Define -32. What do you mean by slope as 32? What does 32 stand for? ये जो -32 है इसका मतलब क्या है? इस वैल्यू का क्या मतलब है इस डेटा में? स्लोप -32 है, बट पूछा नहीं है स्लोप. They are asking interpretation. So what does -32 stand for? How would you define it? आपने जब भी लाइन स्लोप पढ़ा होगा उदय सर के साथ, तो उस m को इंटरप्रिटेशन होगा. SAT would hardly and seldom ask you give value. They'll ask you to give meaning. What does this mean? चलो, give it a try. मतलब इसमें कैलकुलेट तो कुछ भी नहीं करना है, आपको तो स्लोप का मतलब बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप गाइस? क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों यार? The change in y-axis over the change of x. वाह. तो अभी यहाँ पे 32 को कैसे डिफाइन करेंगे? How would you define 32? 32 means change in x upon change in y. Change in y upon change in x. That is 32. That's how you are going to define. X और y defined है कि नहीं है? Is x defined? I am amazed कि ये सेकेंड लास्ट क्लास है और अभी भी m के स्लोप, मतलब स्लोप का इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है आप लोगों को. आप अपनी कॉपीज में देख रहे हैं और मालूम नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. अरे x और y अगर डिफाइंड है तो x और y में वो डेफिनेशन रखो ना. Why are you defining it in by x and y? x क्या है, y क्या है, डिफाइन करो, हो जाएगा स्लोप का इंटरप्रिटेशन. Study price per pint. Price per pint. That's all. तो 32 is price per pint. Per pint का प्राइस 32 है. Guys, what are you talking? How can price per pint be 32? Look at x-axis. कहीं 32 दिख रहा है क्या वहां पे आप लोगों को? हाँ. ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर या 4 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है. एंड 1 2 3 4 1 2 3 चैप्टर्स में ये कवर हो जाता है. एंड वी आर इन द सेकंड लास्ट क्लास. आपको 3 दिसंबर या 2 दिसंबर को आपको SAT देना है. एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिप्लाई यू आर गिविंग मी. फॉरगेट सॉल्विंग वन रियल प्रॉब्लम. ये तो सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं हम. 32 इज द प्राइस पर पिंट. आदि ये दिख रहा है क्या ग्राफ में? 32 प्राइस है पर पिंट ऑफ रास्पबेरी का. हाँ, फिर प्राइस पर पिंट क्या है? वो तो चेंज हो रहा है हर बार. वो तो एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है. एक्स का डेफिनेशन दिया आपने मुझे. एक्स का डेफिनेशन है ना भैया प्राइस पर पिंट. साइना, एम आई टॉकिंग फ्रेंच, ग्रीक? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर, अंडरस्टैंड. तो फिर व्हाट इज वाई? चलो वाई का इंटरप्रिटेशन दो. व्हाट इज वाई? नंबर ऑफ prints sold. राइट. एंड व्हाट इज एक्स? प्राइस पर पिंट. तो व्हाट इज स्लोप?
व्हाट इज स्लोप सिग्निफाइंग, व्हाट इज दिस -32 मीनिंग। मैं तो धोने वाला नहीं हूं, अगर 2 घंटे भी हमको इसी में लग गए तो लग गए। आई कैनॉट मूव फर्दर एंड आई कैनॉट कुक इट फॉर यू गाइस। बताओ भैया 32 का क्या मतलब हुआ? रटा रटाया डेफिनेशन दे दिया मुझे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्या मतलब हुआ इसका? वाई और एक्स क्या है? आंसर आ जाएगा। अनम्यूट करो। Number of pens sold upon price per pen. And if I tell you that is 32, so how would you define it? I tell you that this number upon this is 32, तो क्या मतलब हुआ 32 का? By the way, whatever you have said is incorrect. Slope is not number of this sold upon price of this, ये slope नहीं होता है। स्लोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिस हो गया आपसे। कौन सा वर्ड मिस हो गया? Change in. फिर आप अगर इस तरह से आप लोग दोनों जवाब दोगे, आप सोचो हम कोर्स के एंड पे हैं और आप लोग इस तरह से जवाब दे रहे हैं मुझे। चेंज ही तो स्लोप है, अदरवाइज स्लोप तो स्टैटिक हो जाएगा जिस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो। स्लोप तो डायनेमिक है, वो तो चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है तो 32 का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज चेंजिंग? अरे क्या चेंज हो रहा है भाई? पैथेटिक गाइस, इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है मेरे लिए कि आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? एक एग्जाम लिखना है, वो एग्जाम आज से 10-12 दिन में, यू आर टेलिंग मी वियर्ड आंसर्स। नो, आई एम नॉट हैप्पी। यू गाइज नीड टू वर्क अ लॉट हार्डर। कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम लोग क्लास के अलावा, एंड आई एम 100% श्योर दैट आई एम करेक्ट। यू गाइज आर डूइंग नथिंग अदर देन दीज क्लासेस। कैसे दोगे एग्जाम? ये एम होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या ये पता है कि नहीं? Yes, sir. अगर ये Yes, sir. पता है तो बेसिकली इफ यू लुक एट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज कॉल्ड एज डेल्टा y, which is change in y, change in y over change in x. If I change x by 1 unit, y कितने यूनिट से चेंज होगा ये m हो जाएगा। If you put this change as 1 unit, then m will be equal to change in y. बोलो ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब -32 का मतलब बताइए। ये नेगेटिव का क्या मतलब है? -32 में नेगेटिव का क्या मतलब है? मैं छोड़ूंगा नहीं आज आप लोगों को, आंसर तो आपको ही देना है। ये नेगेटिव का क्या मतलब है? अनम्यूट करके बोलो, बोलो साइना। Change in y upon change in x का value negative है. हाँ, और ये नेगेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब पूछ रहा हूं मैं, व्हाट डज इट सिग्निफाई? Slope decreasing है. ओके, स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप कब डिक्रीज होता है? यहाँ पे देखो ना, वो ग्राफ में समझ में आएगा। आर एक्स एंड वाई डायरेक्टली रिलेटेड? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या एक्स और वाई? इनवर्स रिलेशनशिप है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है? Direct. डायरेक्ट Direct. रिलेशनशिप है। वाह, एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई भी बढ़ेगा, है ना? Inverse, inverse. क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. फिर कैसे हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज अ कॉन्सेप्ट हमने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, एंड यू गाइस आर गिविंग मी सच आंसर्स। तुम दोनों एक जैसे ही बिहेव कर रहे हो, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू टू, यू टू लुक नॉर्मल। नो, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह से तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी। पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, फॉरगेट दिस क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग अहेड। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद यू गाइस। अभी तो पहले बात करना है मुझे आप लोगों से।
Are we doing some serious studies or we are not doing studies? Because I don't think you guys are studying other than what you do for 2 hours over a week. मैथ्स हो रहा है इसके अलावा? एसएटी मैथ्स कर रहे हो क्या? आदि, आई स्टार्ट विथ यू. कितने घंटे पढ़ते हैं आप ऑन योर ओन एसएटी मैथ्स पर वीक? So like खान अकेडमी पे टेस्ट देता हूँ. और क्या होता है जब वो टेस्ट देते हो खान एकेडमी पे? क्या स्कोर आ रहा है? Like 15 out of 12, 13. 15 out of 12. Yes. वाओ, मतलब तुम्हारी तो एक्यूरेसी 100% से भी ऊपर हो गई. और आपका साइना? So currently I was concentrating on English का क्योंकि I was facing problems when I was giving the UT का You are test. facing equally problem with mathematics. If you think you know mathematics, I doubt your thinking. So I'm not actually sure how you guys are doing it. I was going to start mostly maths after 7 क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे थे स्कूल के, तो मैं मैथ्स का 7 सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में चाहिए अदर देन यूटी क्लास, नॉट मोर देन दैट. एंड आप देखिए, ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. हम डेटा हैंडलिंग पे आ गए हैं एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन दैट आई एम टॉकिंग टू यू. Yes sir. I go back to that question because I cannot leave that question. I cannot leave both of you. ये काम तो करना ही पड़ेगा. तो चलो, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स, वाई विल गेट डिक्रीज्ड बाय हाउ मच? मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि अनम्यूट करो. अनम्यूट करके रखो ना, नहीं तो. बाय हाउ मच? अगर मैंने x को 1 यूनिट से इंक्रीज किया तो y कम हो जाएगा. नेगेटिव का ये मतलब है, राइट? स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, दैट मींस that if I increase x by 1 unit, y should decrease by certain number of units. How many units will it decrease by? बोलिए. 33. 32, right? So guys, interpretation of slope is for every $1 increase in price per pint, number of pints sold will decrease by 32 units. and it took us ages. अभी भी समझ में आया है कि नहीं? So for this question, there could be 4 statements. The correct statement would be increasing price by $1 will reduce the number of pints sold by 32 units. This is the interpretation of slope. है कि नहीं? Okay. Wow. So let's go to next question. I think you guys have decided to test me today and test my patience today. Let's see how long can I sustain this one. According to the line of best fit, how many pints of raspberry would the grocery store expect to sell? Expect to sell in a week when price of raspberries is $4.5 per pint. बोलो भाई. If price is $4.5, how many pints will they sell? कुछ तो आंसर बताओ. Approximately how many?
89. हाउ मच? 89. 89, या हम अगर ये ग्राफ में देखेंगे तो भी आप निकाल सकते हो। ये लाइन को मैं ऊपर लेके जाता हूँ as straight as I can, and you will see this is very close to very, ये थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया, very close to 90. So 89, 90 pins it will say. दो तरीके हैं, या तो x को यहाँ पे रख दो 4.5 और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और y की वैल्यू निकाल लो। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो यही करना, बट लेट्स से ऑप्शंस आर फार अपार्ट, 100, 110, 90, 80, तो फिर यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है 80 से ज्यादा होगा और 100 से कम, आंसर 90 होगा, है ना? So answer is this. So this is what scatter plot is. Scatter plot, largely if you see, the skill that we have used is straight line. Straight line वाला skill हमने use किया है, and this is very widely used. Scatter plot काफी popular है, SAT people really like it, और बहुत सारे questions इसी के ऊपर based आते हैं। एक मिनट, where is my cursor? तो अब मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया? हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? यू हैव गॉट मैथ्स बुक विथ यू? ठीक है, तो मैं कुछ है ना क्वेश्चंस पॉइंट आउट करता हूं, आप लोग उस पे चलो। आई वांट यू टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 में आओ और क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। आर यू देयर? लेट मी गिव यू 2 मिनट्स टाइम, क्योंकि आपको डेटा भी पढ़ना है और उसको सॉल्व भी करना है। पहले खुद पढ़ो, उसको समझो और फिर सॉल्व करना। अच्छा, एक काम करते हैं, उसको पढ़ लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट, विल सॉल्व इट टुगेदर। आई गिव यू अ मिनट्स टाइम। बोलो, डिस्कस कर सकते हैं क्या? पढ़ लिया डेटा? Yes, sir. ठीक है साइना, सो रीड इट आउट लाउडली। The question. हम्म The first metacarpal bone is located in the hand. The scatter plot below shows the relationship between the length of the first metacarpal bone and the height of 9 people. The line of best fit is also shown. How many of the 9 people have an actual height that differs by more than 3 centimeters from the height predicted by the line of best fit? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेटा समझ में आ गया आदि? साइना, एनी प्रॉब्लम विद द डेटा No, सेट? sir. नो प्रॉब्लम। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट ऑन, हाँ, तो आपने इसको समझ लिया। मैं इसको ना भी एक बार हाइड करता हूँ। तो हाउ मेनी ऑफ द 9 पीपल, क्या लगता है क्या आंसर है? एक्चुअल डिफर बाय मोर देन 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम हाइट प्रिडिक्टेड बाय लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बताइए। 4. 4, लेट्स चेक। क्या ये वाला जो पर्सन है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट से मोर देन 3 सेंटीमीटर है? ये रहा हाइट इन सेंटीमीटर,
ये है लेंथ ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पन बोल इन सेंटीमीटर. सो इज इट मोर, नहीं क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द 9 पीपल हैव एन एक्चुअल हाइट का डिफरेंस. ओके, तो ये तो है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डिफरेंस है. ये नहीं है, ये बंदा है, दिस इज माय सेकंड वैल्यू, दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू. Not this, not this. How about this? Nahi. If you look at one, this one division means 1 centimeter, right? तो ये भी नहीं है. About this value, yes, ये है 3, ये है 4, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस है. डिफरेंस बोला है, वो पॉजिटिव है डिफरेंस या नेगेटिव वो नहीं बोला है. एंड ये नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर है. आंसर इज 4, ऑप्शन बी. बोलो, समझ में आया? आदि तुम्हारा हो गया ये करेक्ट, साइना ने तो आंसर कर दिया था. Yes, sir. 4. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद ही एक और क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करिए प्लीज, विच इज ऑन द सेम डेटा सेट. इसी डेटा सेट पे है वो. व्हाट इज द प्रिडिक्टेड हाइट ऑफ पर्सन जिसका मेटाकार्पल बोन का लेंथ है 4.45 सेंटीमीटर. बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं तो ध्यान से सॉल्व करना. वन 168, 169, 170, 171. वन 170. चलो चेक करते हैं. अब Yes. 4, दिस इज 4.4, राइट? ये 4.4 है, वो बोल रहा है 4.45. मतलब इन दोनों का सेंटर ये वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेटली. अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ एंड आई विल ट्राई टू बी एज, नहीं यार आई एम नॉट, बट स्टिल एज स्ट्रेट एज आई कैन. धीरे 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 लेट मी गो. तो ये कहाँ यहाँ टच हो रहा है, करेक्ट. ये 170 पे हो रहा है. आंसर इज 170. 171 तो काफी ऊपर है, वो तो 4.5 पे दिख रहा है. और 169 किधर है? 169 भी नहीं होगा, क्योंकि 169 जो है वो 4.4 पे दिख रहा है ना? तो आंसर, द बेस्ट फिटिंग आंसर इज 170, ऑप्शन नंबर सी. बोलो आदि. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ प्लीज, ऑन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 10. Give the interpretation of line of best fit. इस क्वेश्चन में लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इंटरप्रिटेशन दो. ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जगाने के लिए, टू वेक यू अप फ्रॉम योर लॉन्ग स्लम्बर. स्लम्बर का क्या मतलब होता है आदि? व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश वर्ड स्लम्बर? So, like confusion. नहीं, नॉट कंफ्यूजन. तुम इंग्लिश पे फोकस कर रही थी ना सान्या? बताओ स्लम्बर का क्या मतलब होता है? SLUMBER, स्लम्बर. like long sleep and लॉन्ग स्लीप, लॉन्ग स्लीप. तो ये जो आप लोगों ने लॉन्ग स्लीप ले ली थी ना इस कोर्स में, वो हिलाने के लिए जो मैंने अभी किया था रास्पबेरी में, ये वैसा ही क्वेश्चन है. लेट मी सी कितना जगह पाया मैं आपको. Make sure you are doing 4 to 5 hours of mathematics other than class per week. That's all. उतना मिनिमम करना है आपको. sorry बोलो विच ऑप्शन? A. अच्छा, अब आदि को देखते हैं. आदि तुम बोलो. ये 10th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. साइना का आ गया. यू ऑल्सो अनाउंस योर आंसर. ए है कि नहीं, एंड देन आई विल हेल्प यू. आई डोंट हैव प्रॉब्लम विथ रॉन्ग आंसर. तो आप Yes, बोलो. sir. A. ए है? Yes. Acha, let's see. So it means the predicted height increase in centimeter, yes, for 1 centimeter increase in first metacarpal bone. Absolutely. ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है.
ये वाला पार्ट एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट वाई एक्सेस पे दिया हुआ है, तो चेंज इन वाई अपॉन 1 यूनिट चेंज इन एक्स इज लो, आंसर होगा ये। वेरी गुड। ठीक है गाइस, आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। कैसा है ऑन योर बुक? Yes, let's solve question number 5. This is a different set. ध्यान से पढ़ना। इनकम दिया है इन थाउजेंड्स, ये बहुत ध्यान रखना यूनिट का। वो जो 30 लिखा है ना, वो 30 मतलब 30,000 है, 10,000 है, 20,000 है, ठीक है। So 5.5. So B. 5, अच्छा आंसर निकाल लिया। बी 5.55, करेक्ट। ये आंसर करेक्ट है। यू वांट मी टू सॉल्व दिस कि आगे जा सकते हैं? कैन वी गो हाँ, अहेड? जा सकते हैं। ठीक है, Yes. क्वेश्चन नंबर 6 करो। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। दिस इज अ ग्रिड इन प्रॉब्लम, आपको आंसर निकाल के टाइप करना है स्क्रीन में। What is the minimum starting salary in thousands of dollars at company X? स्टार्टिंग सैलरी क्या है इस कंपनी X पे? चैट बॉक्स में आंसर टाइप करके भेजना है आपको मुझे। आई वांट टू सी कि आप कैसे टाइप, क्या टाइप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी फॉर कंपनी X? मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी, दोनों के आंसर आ गए हैं। साइना करेक्ट, नहीं दोनों के नहीं आए। आदि तुम्हारा नहीं दिख रहा है मुझे आंसर, सिर्फ साइना का मिला है। Sir, absent. एक बार फिर भेजो, अनाउंस करो, चलो। करेक्ट, आदि इट्स 20. करेक्ट, गुड। दोनों का आंसर सही है। 20,000 मत लिख देना, आप दोनों ने 20 लिखा है जो कि सही है। एंड आई होप यू हैव गॉट दैट, गूगली समझ में आ गया ना। 20,000 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सैलरी इन थाउजेंड्स पूछा है और वही दिया है, वैसे ही दिया है। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है भाई? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, I'll give you almost like let's say 2 minutes का time. Based on line of best fit to the data represented, which of the following is expected income of an employee with a 35 years of experience? Data 25 years तक ही दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रापोलेट करना है डेटा, और 35 years of experience पे क्या सैलरी होगी ये बताना है। So C. Okay, I will wait for Adi to also come up with his answer. Adi, I'm waiting for you. Yes, sir, C. सी, ठीक है। तो विल गो विद साइना फर्स्ट। साइना ये थोड़ा समझाओ, हाउ सी। सर A और B तो नहीं होगा क्योंकि वो 25 ईयर से कम है, अच्छा रुको, जो तुम बोल रही हो ना, या फिर आई विल ऑल्सो चेक। हाइड मीटिंग कंट्रोल, यस। ए और बी सर। नहीं होगा, बिकॉज 25 पे ही 65,000 हाँ, की सैलरी दिख हाँ, रही है, हाँ। तो और एक 35। तो उससे भी कम है। तो चलो हटाओ। ओके, सर और मैंने लाइक ऐसा अंदाजा लगाया कि 96 तो बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऐसे आगे तो 80 90 लाइक 96 बहुत ज्यादा हो जाएगा 35 के लिए। जब मैंने ड्रॉ किया जैसे स्ट्रेट लाइन तो फिर तो इस भाई हिसाब से। अल्टीमेटली मतलब तो राइट आंसर लाने से है, तो वो आप ले आए। यू गॉट द राइट आंसर एंड नोबडी इज आस्किंग यू हाउ।
on your SAT paper. But यहाँ समझना जरूरी है because let's say had it been 86, if not 96, had it been 86 तो क्या करती तुम? तो ठीक है, अभी के लिए तो चल जाएगा. आदि, योर मेथड. सर जब ड्रॉ करेंगे तो इट्स बिटवीन समथिंग लाइक 80 एंड 90, सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन आर 83 एंड 96, तो ड्रॉ 83 कैसे को करोगे? या ये समझ में नहीं आया. ड्रॉ मतलब इसको तुम ऐसे मतलब ऊपर आगे ले एक्सटेंड, जा रहे हो. यू आर हाँ टेकिंग दिस एक्सटेंड, फर्दर. यस तो सर, यहाँ पे कहीं ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट आउट हियर इज अ 30 इयर्स एक्सपीरियंस वाला. यस फिर हम इसको स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये जो स्क्रीन पे होगा ये क्वेश्चन पेपर बेस्ड तो है नहीं टेस्ट. और फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा. हाँ, तो आपको ये पता है कि 25 ईयर्स में ये 72-73 थाउजेंड के आसपास होगा. 30 ईयर्स में. हाँ, फिर यस, तो उसके बाद 83 क्लोजेस्ट था। बाप रे. तो तुम दोनों ने ना बहुत बड़ा, दिस इज कॉल्ड गेस्टिमेट. यूजिंग गेस वर्क एंड एस्टिमेशन यू गाइज हैव गॉट दिस आंसर. बट मान लो, जैसा मैंने अभी साइना को बोला, मान लो वो 82 है या 86 है, देन हाउ डू यू फाइंड आउट? तो वो मेथड समझते हैं. ए और बी वाला मेथड मुझे समझ में आ गया. लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू विथ अदर मेथड. सो गाइज, इसको स्क्रीन पे देखना. आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट ऑन स्क्रीन. Now, because this is line of best fit and this is a line, it will have a slope. तो ये इक्वेशन लिखते हैं. Let's say y, which stands for income in thousand, is equal to m into x, which is years of experience, plus c. Do I know value of c, guys? 20. 20. Very good. अभी निकाला था आपने प्रीवियस क्वेश्चन. ये ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं. m तो पता नहीं है तो m ढूंढ लेते हैं. अभी ढूंढ लेते हैं. m ढूंढने में क्या टाइम लग रहा है. m will be equal to y2 upon y2 minus y1. तो लेट्स से ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है. ओके साइना. तो y2 का वैल्यू क्या होगा? 65. 65. माइनस y1 का वैल्यू क्या होगा? 20. 20, अपॉन x2 का वैल्यू क्या होगा? 25. Minus माइनस x1 का वैल्यू क्या होगा? 0. 0. 0, कितना आया ये? 45 अपॉन 25, ना. मैं तो माउस से कर रहा हूं तो मेरी तो मजबूरी है. आपकी क्या मजबूरी है? आगे बोलो. सो 45 अपॉन 25, कैन आई से 9 माइनस अपॉन 5? कैन आई से 1 अपॉन 8? सॉरी, 1.8. बोलो. तो इसका मतलब ये हुआ that for every additional year of experience, salary increases by 1/8 and followed by, इससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1800 से सैलरी इंक्रीज हो जाती है गाइस. तो माय इक्वेशन बिकम्स y is equal to 1.8. आपको कितने पे सैलरी चाहिए? 35 years 35, प्लस 20. चलो इसको सॉल्व करते हैं. 1.8 इंटू 35 करना है. अगर ये 2 इंटू 35 होता तो 70 हो जाता सीधे, है ना. अगर 2 इंटू 35 होता तो मैं सीधे 70 लिख देता, बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं मैं तो अब ये 0.2 कम है. 0.2 कम है मतलब 0.2 कम है मतलब 0.7 कम है. तो ये होगा 63. 1.8 इंटू 35 विल बी 63. कर लेना आप कैलकुलेटर से. प्लस 20 विल बी 83. आंसर इज 83. डिड यू गेट दिस? हाँ, इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग प्लीज डू. कर लो और मुझे बताओ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं. आगे बढ़ सकते हैं. चोपड़ा जी, ये सब समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि तुम दोनों को, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों, एटलीस्ट जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था तुम दोनों के साथ, you both were and of course you are, you guys had maths as your strength.
अभी तक तो मुझे यही लगता था बिफोर दिस क्लास। तो आई डोंट वांट यू गेट वेस्टेड ऑन दैट एसएटी पेपर। आप कर सकते हो, आप दोनों में वो मैथ्स वाली समझ तो मुझे बहुत हाई दिखती है व्हेन वी यूज्ड टू डू दैट बिग क्लास। मैं पहली बार सिर्फ आप दोनों को पढ़ा रहा हूँ, जब पूरी क्लास को पढ़ाता था उसमें आप अबव एवरेज ही थे दोनों, यू वर डूइंग वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, यू रियली कैन डू वेरी वेल। इसलिए मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ कि नहीं, इन दोनों को छोड़ नहीं सकते इनकी हाल पे, बिकॉज इफ आई लीव यू ऑन योर ओन कंडीशन यू विल वेस्ट द एंटायर अपॉर्चुनिटी। चलो, ओनली 30 सेकेंड्स, आंसर बताओ। गिव द इक्वेशन फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। A. ए, अभी A. सॉल्व किया है कि नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं करते हैं। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 20 करना है गाइस आपको। प्लीज गो टू योर बुक्स, रीड द डेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का। आई गिव यू लेट्स अ मिनट्स टाइम एंड देन वील डू इट टुगेदर। करो क्वेश्चन नंबर 20। लेट मी नो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द डेटा। दिस इज टू वे, एक टेबल है, टेबल में डेटा दिया है। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो। आदि पढ़ लिया डेटा को आपने क्वेश्चन नंबर 20 का? Yes, sir. तो रीड इट आउट लाउडली वंस फॉर ऑल ऑफ अस। According to the information in the table above, what was the approximate population of California from 2011 to 2030? ओके, परफेक्ट। एंड टेबल के ऊपर हेडिंग क्या है आदि इन योर बुक? Top 5 states for new job growth per capita 2011 to 2030. Okay. So, Saina, what have you understood? So the table gives the total jobs added in the state and the new jobs for 10,000 residents Right. in the 5 states. Correct. For the period 2011 to 2013, these are top states that you can see. Top 5 states: California, Colorado, North Dakota, Texas, and Utah. Now, total jobs added in this period दिया है रो 1 में, and रो 2 में आप देखोगे तो number of new jobs added per 10,000 residents दिया है, ठीक है? Coming down to California में क्या population होगी ये पूछा है, very strange. They are talking about Californian population. If you see all options, options are in millions, right? But data is not in million, वो unit data दिया हुआ है। अब अगर आपको एक मेथड याद हो मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में, एक यूनिटरी मेथड पढ़ा है क्या कभी? यूनिटरी मेथड 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में याद है वो यूनिटरी मेथड? इफ 4 रुपीज में आई गेट 40 मैंगोज, नहीं ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गया। 4 रुपीज में आई गेट 1 मैंगो, तो 40 रुपीज में आई विल गेट 10 मैंगोज। वो जिस तरह से आप करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई टेबल बना के, है ना? बस वैसे ही करते हैं इसको। तो गाइज लेट्स सी, कम डाउन टू कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में फॉर एवरी 10,000 पीपल दैट दे हैव कितना जॉब ऐड हुआ है? तो मैं यहां पे करता हूं, देखो 10,000, 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4। जब इतने लोग हैं तो जॉब ऐड हुआ है 235। तो उल्टा कर लेते हैं ना, अगर ऐसा ही करना है तो उल्टा करते हैं। न्यू जॉब्स दैट वर एडेड इन कैलिफोर्निया वर 235 एंड दिस इज ओवर 10,000 रेसिडेंट्स। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो इफ न्यू जॉब्स एडेड वर, कहां चला गया भाई, हाँ ये, विच इज 904500,
तो पॉपुलेशन क्या होगा, बोलो आदि, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड हाँ तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 904500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ डिवाइडेड बाय 235, है ना। और उनको जो पॉपुलेशन है वो मिलियंस में चाहिए, कितने जीरो होते हैं मिलियन में, 6. इसको डिवाइड 6। कर दो 10⁶ से। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये समझ में आ रहा है आपको, ये इक्वेशन कहाँ से आया, दिस विल गिव मी पॉपुलेशन, तो देखो ये स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा, ये हटा दो, ये हटा दो, और इसके ये दो जीरोस हटा दो। तो बेसिकली 9045 को डिवाइड करो 235 से, और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। 9045 डिवाइडेड बाय 235, 38.4। so answer is option number C, so many million people live in California। बोलो, ये समझ में आ गया यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन करना। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, आपको समझ में आ गया साइना। Yes, sir. Adi, they say that in California, so many new jobs were added for 10,000 people. इतने 10,000 लोग थे, 235 jobs were added. Question is asking us to find population of California. So I've gone the unitary method way, where I've said, let this be job added wala figure, and let this be population या resident wala figure. So when jobs added is 235, residents are 10⁴, 10,000. So if jobs added in the same period is 9,04,500, what is the population? So if you remember, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई होता है और इससे जाके डिवाइड हो जाता है, तो मैंने वही किया, jobs into multiply this divide by this, because answer is required in millions, तो इसको डिवाइड कर दिया 1 मिलियन से, 10⁶ से, तो अब जो भी आ रहा है वो मिलियन में आ रहा यस सर, गॉट। है। ओके, so you guys need a break or I continue? If I continue, I'll leave you 5 minutes early, of course. Otherwise, I can give you 5 minutes का break. क्या करना है? Continue. Continue. आदि continue. यस सर। ठीक है, चलो, we'll continue. Now I want you to solve question number, नहीं 24 नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। Question number 16. Please solve question number 16. ये एटलीस्ट पढ़ो, ये साथ में करते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये स्क्रीन पे देखो, द बार ग्राफ अबव, इन दिस केस ऑन द राइट, shows renewable energy consumption in quadrillions of BTU in United States by energy source, okay, for several energy sources in the years 2000 and 2010. डार्क वाला 2000 का डेटा है, लाइट वाला बार जो है वो 2010 का डेटा है, for various energy sources like biofuels, geothermals, hydroelectric, wind and wood. Of the following, which best approximates the percent decrease in consumption of wood power in United States from 2000 to 2010? Percent decrease. इसको करने का ना तरीका क्या है? I will go to my whiteboard. एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, which is called as परसेंट चेंज। अगर मुझे निकालना है, अगर मेरे पास एक पीरियड है और उस पीरियड में परसेंट चेंज क्या है, द फॉर्मूला इज परसेंट चेंज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो दो दो वैल्यूज होंगी मेरे, उसके बीच में निकालना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। सो इफ यू लुक इनटू दिस क्वेश्चन, वो पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा तो परसेंटेज डिक्रीज है, अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा तो परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है।
ओल्ड वैल्यू का मतलब हो गया इन आवर केस 2000 का वैल्यू, न्यू वैल्यू का मतलब हो गया 2010 का वैल्यू, राइट। तो चलो क्या चाहिए, वुड पावर में चाहिए ना, पता ही है वुड पावर के लिए न्यू वैल्यू क्या है, कैन आई से 2, 2 दिख रहा है, और ओल्ड वैल्यू क्या है 2.25. अपॉन 2.25 इंटू 100। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव को भूल जाना, वो नेगेटिव बस यही बता रहा है कि डिक्रीज है, अपॉन 2.25 इंटू 100। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 25 अपॉन 2.25 या फिर 1 अपॉन 9 इंटू 100। 1 अपॉन 9 इज 11.11%। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन है ये, बी। ऑप्शन बी, बी एज इन बॉम्बे। बोलिए एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर मी हियर। ये फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज का बिटवीन टू पीरियड। सो यू आर टेकिंग फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बीच की वैल्यू से मतलब ही नहीं है। अगर उस पीरियड में परसेंटेज चेंज निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज है, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज है। ओके गाइस, आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, मुझे देखने दो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19th। 19th पे आओ। अच्छा 19th एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी नहीं कर सकते, डोंट डू एनीथिंग, लुक एट दी व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको बहुत क्लियरली। तो वी आर डूइंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो देखते हैं, बट लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट रेंज ऑफ डेटा सेट। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ डेटा सेट, एनीबडी, कोई आइडिया इस पे? So like लेट्स what से, are the values of the data set? सॉरी, In what are the values of data sets, like the range? एंड हाउ डू यू फाइंड स्टैटिस्टिकली वैल्यू ऑफ रेंज, क्या फॉर्मूला है उसका, याद है क्या? नहीं, ठीक है। सो लेट्स से दिसंबर एसएटी इज टेकन बाय कुछ 20 स्टूडेंट्स ऑफ यूटी। वो दिसंबर एसएटी लेते हैं, स्कोर्स आता है जिसमें मिनिमम स्कोर है 1080 एंड हाईएस्ट स्कोर है 1580, and then there are other scores in between. Range signifies max value minus the min value. ये range of data set है, max minus min, max minus min. So in this example, the range of data set is 500. Are you getting me? बस that's all. Range यही होता है, max minus min. Okay guys? Now आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। What do you mean by this word mean? The mean of something is sub addition of those values divided by number of total values. Okay, The so mean average. is a simple average. Yes, sign up. Yes, sir, the average. Everything. Yeah, so basically sum of all values divided by number of values you have, you get mean. ये भी समझ में आ गया हमको mean क्या होता है. So from this I come down to one important concept called standard deviation. DEVIATION, standard deviation. तो SD पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. Now guys, standard deviation में the keyword is deviation and not standard. अब standard deviation, the good part is in SAT, the scope is not to find value of standard deviation, but the scope is to understand and give meaning, interpretation to standard deviation. Standard deviation होता क्या है? Let's try and understand this concept first. ठीक है? तो let's say मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे साइना, इफ आई टेल यू दैट यू हैव अ चॉइस ऑफ पिकिंग वन यूएस यूनिवर्सिटी, एनी वन दैट यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू, व्हिच यूनिवर्सिटी विल यू पिक? MIT.
MIT. And Adi, if I give you same choice, but I tell you cannot pick MIT, but you can pick any other university, which one will you pick? Harvard. Harvard. So let's say I have got MIT and I've got Harvard. Let's say I've got two universities. Now what happens is MIT mein I go and I study for let's say particular major ka undergrad admissions, and let's say MIT admitted 100 students that year. So मैंने एक number line लिया and I looked at the profile and I found कि 1600 से लेके कुछ बच्चे 1600 पे आए, कुछ 1590, 1580 and so on. Last student admitted was of 1380. Similarly, I went to Harvard and वहां भी let's say 100 students को admission मिला undergrad के same major में. मैंने यहाँ पे देखा that 1580 से लेके let's say 1410 तक हार्वर्ड में एडमिशन मिला. 100 स्टूडेंट्स ही हैं दोनों जगह, सेम डेटा सेट है, सेम सैंपल साइज है. नाउ व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस, I calculated further and I calculated what is the mean score at MIT. Let's say the mean score at MIT came out to around 1520 and Harvard में mean score was let's say 1510. ठीक है. फिर मैंने ये 100 लोगों को प्लॉट करना चालू किया कि हर एक का स्कोर निकाला. तो आई सॉ कि 3-4 बच्चे यहाँ थे, 3-4 बच्चे यहाँ थे. There were a lot of students who were here. 15-20 पे बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ कुछ बच्चे थे. मान लो ये 100 डॉट्स हैं गाइस, ये 100 डॉट्स हैं. फिर मैं हार्वर्ड में गया और हार्वर्ड में भी हर बच्चे का ईच डॉट रिप्रेजेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लाइन के ऊपर उसका स्कोर. उसकी हाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो स्कोर उसका एक्स एक्सेस पे दिख रहा है. तो मैंने यहाँ भी 100 डॉट्स प्लॉट किए. सो देयर वर सम स्टूडेंट्स हियर, देयर वर सम स्टूडेंट्स हियर, देयर वर सम स्टूडेंट्स हियर. यहाँ भी कुछ बच्चे थे, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ भी काफी सारे बच्चे थे. और मान लो ये 100 डॉट्स हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि 100 डॉट्स हैं. ठीक है, ये समझ में आ रहा है जो मैंने प्लॉट बनाया है. नाउ इफ यू लुक एट दिस, दोनों में ना कुछ स्पेशल चीजें हो गई. जब मैं MIT को हार्वर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, सो आई सी कि हार्वर्ड का मीन ये है और ये MIT का मीन है. बट व्हेन आई लुक एट डेटा, आई सी समथिंग वेरी पिक्यूलियर थिंग्स अबाउट दिस डेटा. क्या MIT में कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? MIT में MIT has lot of data which is packed around the mean and little data is packed as you go far from the mean. जबकि हार्वर्ड में क्या हो रहा है, डेटा इज फेयरली डिस्पर्स्ड अक्रॉस द मीन. बोलो. तो ध्यान रखो, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स द स्प्रेड ऑफ डेटा. स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ डेटा अक्रॉस. स्प्रेड अक्रॉस किसका है, किसके? हाँ, मीन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं. मीन इज अ टूल टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी. तो बेसिकली ये जो डिविएशन है, ये डिविएशन किसके अक्रॉस की बात कर रहे हैं? मीन से कितना डिविएटेड. हायर द स्प्रेड, हायर विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन. More compact the data across mean, lesser standard deviation. More spread the data has across mean, more will be standard deviation. So I can conclude standard deviation of Harvard University would be higher than standard deviation for MIT. बोलिए, ये समझ में आया जो मैंने ये सब किया? Any questions you have for me here, please ask me. पूछो मुझसे. ये समझ में आ गया? रेंज समझ में आ गया? स्टैंडर्ड डिविएशन समझ में आ गया? स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स स्प्रेड ऑफ डेटा. The more concentrated the data is, less will be standard deviation compared to a data set where data is more spread.
ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, निकालना तो आता है बट हम उसका मतलब समझना भूल जाते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन कि डेटा कितना स्प्रेड है अक्रॉस में। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन हायर है हार्वर्ड का कंपेयर टू एमआईटी। एमआईटी में ज्यादा बच्चे मीन के आसपास हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ये इक्वली स्प्रेड डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 19 विच इज आई थिंक, मुझे पूरा याद नहीं है बट आई थिंक इट्स अ एसएटी प्रॉब्लम। लेट्स सी। Yes, a real problem. Please solve. Two cities, 21 days, temperatures were measured. They are asking, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पूछा गया। हाँ जी, बी। बी। ओके, चलो वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट आदि सेज। सिटी ए में 80 टेम्परेचर 3 बार आया, 79 14 टाइम्स, 78 2 टाइम्स, 77 once, 76 once। इसी तरह सिटी बी देखेंगे आप, temperature 86 times, 79 3 times, 78 2 times, 77 4 times, 76 6 times. Adi, waiting for you. Yes, sir. B. Answer is B. That was very good and very fast, Sanya. Very good. यही idea है. Answer is B. Standard deviation of city will be larger क्योंकि इसका मीन कुछ 78 के आसपास आएगा और आप देखोगे इसके अक्रॉस उतना ही डेटा है। इसका मीन कुछ 79 के आसपास आएगा एंड यू विल सी देयर इज लॉट ऑफ डेटा across the mean, right? So standard deviation of B will be greater than standard deviation of A. बोलिए, ये सब समझ में आ गया? Let's solve SAT challenge question 5. आपकी बुक में this is also I think question number 36 है ये, या कौन सा है देख लो, बट क्वेश्चन नंबर 5 चैलेंज क्वेश्चन का सॉल्व करना है जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 22 students in a health class experiment was conducted and their pulse rate was recorded before and after completing light exercise routine. इसको डॉट प्लॉट भी बोलते हैं। ये डॉट प्लॉट का रिजल्ट है। S1 R1 S2 R2 के वैल्यूज को समझ लेना पहले और फिर बताना क्या राइट आंसर है। Sir, D. ओके, आदि होल्ड, साइना वेटिंग। सर डी। सेम डी। ओके, विच इज करेक्ट बिकॉज आप देखोगे तो दोनों का रेंज सेम है 32 राइट। तो रेंज सेम है तो आंसर या तो ए है या डी है। बट देखने से ही समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन बिफोर एक्सरसाइज विल बी लेस देन स्टैंडर्ड डिविएशन आफ्टर एक्सरसाइज। तो मतलब S2 शुड बी ग्रेटर देन S1 बट S2 इज नॉट इक्वल टू S1 भी चलेगा। ये इक्वल तो है ही नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो गया ऑप्शन डी।
Right, guys? So this is about standard deviation and range. ये ऐसे वाले questions हमने कुछ किए. This is, I think, from Khan Academy level 4 का question है ये. Now I want you to go to. अच्छा, उससे पहले let's solve this question now. Based on the histogram above of the following, which is closest to average number of seeds per apple? 3 seed वाले कितने एप्पल थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 seeds. They were total 12 apples. What is the average number of seeds per apple? How will you do this problem? तो total number of seeds निकाल लेते हैं. 3 seeds के कितने apples हैं? 2. 3 seeds के 2 apples हैं. So can I say 3 into 2, 6 seeds यहां से आ जाएंगे. 0 apple of 4 seeds. 5 seed के 4 apples. I will get 20 seeds from here. ये फिर वो frequency table वाला question जैसा हो गया. 1 apple of 6 seeds, so I'll get 6 seeds. 2 apples of 7 seeds, 0 apples with 8 seeds, and 3 apples with 9 seeds. क्या आता है ये value? 20 and 20, 40, 46, 46 and 27. 73, is it? Your answer C है. कितना? C है आंसर. C. 73 seeds हैं. Total apples are 12. So average number of seeds per apple is 6. 7 6 are 12 6 are 72. Right, right guys? बस Yes, ये sir. भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. ये वाला एक क्वेश्चन हो गया. Now I want you to solve some challenge problems. तो आपकी बुक में पहला वाला challenge problem कौन सा है? Can you just identify it for me? Is it this one? Minutes per game, minutes played versus points को. यही है क्या? Yes, sir. So let's do this one. An excellent question. Which of the following equation best relates minutes played per game X and points scored per game P for players of this game? तो आपको वो line of best fit का equation निकालना है basically. Sir, B. बोलो. Sign up. चलो साथ में करें. नहीं हो रहा है. हाँ, what do you say? Okay, so we'll do this together.
I'll read this. Saina, you can announce your answer as soon as you get this. तब तक मैं पढ़ता हूँ. During 14-15 season, a statistician collected data on professional sports team. The scatter plot to left shows his finding for the average minutes played per game and average points scored per game for each player of the team. ठीक है, तो उसने ये कलेक्ट किया और ये सब प्लॉट किया. Which of the following equation best relates minutes played per game as x and points scored per game as p, which is y basically for players of the team. अब ये चार इक्वेशन है. ये मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा गाइस, तो ये कुछ ऐसा बनेगा. लाइन ऑफ बेस्ट फिट लेट्स से कुछ तो भी ऐसा बनेगा, है ना. अगर ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगा तो इसका y इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव होगा. अगर वो नेगेटिव होगा तो कौन से ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते? बी और डी नहीं हो सकते. बी और डी नहीं हो सकते. तो आदि आपका आंसर बी आया. गड़बड़ हो गई ना. ये वाला एक छोटा सा हमने टेस्ट लगाया और अभी देखा कि अगर मिनट्स प्लेड 0 है तो वो पॉइंट्स इफ यू पुट एज x इक्वल टू 0 तो वो नेगेटिव आना चाहिए एज पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट. पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता. तो आंसर या तो ए है या सी है. अब कैसे करें भाई? आदि कैसे? हाँ बोलो. स्लोप निकाला, लाइक ऐसा अंदाजा लगा के, तो ओके, क्लोज सो टू स्लोप 0.5. निकालना. साइना, स्लोप निकाला मतलब आपने m का वैल्यू निकाला और ये देखा वो 2 है या 0.5 है. हाँ. ओके, हाउ? बताओ. क्या y2 लिया, क्या y1 लिया, क्या x2 लिया, क्या x1 लिया? सर मैंने So I'll tell you what. चलो मैं rather than उस पे लगाने के समय what I'll tell you is option, दो ऑप्शन है. If I am there in place of you, I'll do this. I'll take some values of x. Rather, I'll use a tabular method. And because equation नहीं है and because line भी नहीं है, तो मैं शायद वो slope वाला venture नहीं करूंगा. तो I'll use a tabular method where I'll take some values of x and मैं p का वैल्यू निकालूंगा and I'll compare it with option A. I'll compare it with option C. p का वैल्यू with option C. ठीक है. तो let's say I take x का वैल्यू as 3 guys and we'll take real value of p here. So if x is 3, what is value of p? 0. ठीक है. लेट्स सी. अब ऑप्शन ए में x को 3 रखो. ऑप्शन ए में x को 3 रखो. क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ p? -2. -2. x को रखो 3. अच्छा 4. सी में अगर x को 3 रखा तो -0.5. 0.5. बोलो साइना. 0 के क्लोज कौन है? ये है. तो अभी तो ये जीत गया. टेक एनी अदर वैल्यू. लेट्स टेक दिस वैल्यू. x को रखो 6. रियल वैल्यू क्या है? 2. ऑप्शन ए में रखो 6. ऑप्शन सी में रखो 6. बोलो क्या आएगा? 1. 1. ये भी क्लोज है. टेक एनी अदर वैल्यू. टेक वैल्यू इज 9. x इज 9. चलो मुझे बताते जो 9 2 18. ये आएगा 16. सी का वैल्यू क्या आएगा अगर x को रखा 9? रियल वैल्यू क्या है जब x को रख रहे हैं 9? So every time you do this, which option is more closer to real value? C. Answer is option C. So how I did that, I took 16 as y2 and -2 as y1, and then 33 as 16 as, sorry वापस जाते हैं. 16 as y2 कहाँ है? There is no value at 16. कैसे लिया है? सर ऐसे एक वेट लिया मैंने, तो उस हिसाब से मुझे 0.54 आया. और 0.54 आया और उससे आपने ऑप्शन सी निकाल लिया.
कर सकते हैं। आपने इसमें क्या किया, आपने उसमें वो लाइन को भी अज्यूम कर लिया, हाँ बट दैट्स ओके। मतलब आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शन सी को सही मान के इफ यू पुट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड पी एंड यू विल सी वो रियल के ज्यादा क्लोज है देन ऑप्शन ए। बोलो आदि। ठीक है, एक मिनट, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। व्हाट्स टाइम बाय और वॉच गाइस? 1-5। 1-5 तो अपने पास टाइम है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व चैलेंज प्रॉब्लम 2, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। वाइट आई मेल, वाइट आई फीमेल, नॉर्मल, ये वाला एक क्वेश्चन है। सैड चैलेंज प्रॉब्लम 2, प्लीज सॉल्व। सर 58। Okay, waiting for you, Adi. What is relative frequency of male fruit flies that have white eyes? बोलो आदि, क्या हुआ? Sir, I'm confused between the question. ठीक है, चलो करते हैं। सो इफ आई लुक एट दिस टेबल, इट सेज ये 2x2 टेबल है। मेल, फीमेल, white eye and normal flies. So white eye fruit fly in first generation offspring. Chalo. Question says, based on the information in the table, as a percentage, approximately what is relative frequency of male fruit flies that have white eyes? So सबसे पहले तो ये देखते हैं, Saina, how many male flies do we have in our data set? How many male flies are there? 83। तो ये तो गिवन है कि हमको मेल फ्लाइज को ही स्टडी करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल फ्रूट फ्लाइज दैट हैव व्हाइट आईज, तो मेल फ्रूट फ्लाइज, इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेयर दिस कंडीशन इज फर्स्ट। इसमें से कितने व्हाइट आई होने चाहिए? तो वो डिजायर्ड सेट कितना है? 62 का है, राइट? 62 अपॉन 83, ये क्या होगा? 62, अगर ये 60 अपॉन 80 होता तो 2/3 होता, बट ये 2 है और ये 3 है। दिस इज क्लोज टू व्हाट, 75%, 3/4, Yes. because 23s are and 24s are. So this is more like 3/4, which is 75%. Answer is option D. Because relative frequency of male fruit flies, ये कंडीशन पहले स्टैब्लिश हो गया, तो सिर्फ मेल फ्रूट फ्लाइज वाला सेट लो, वो 83 है। उसमें से व्हाइट आई कितने होंगे? वो 62 है। अब आपने 58 कैसे निकाला? साइना, व्हाट डिड यू डू?
सर मैंने 62/107 दैट इज 62 + 45 कर लिया एंड सिक्सटी फिर मुझे टू राउंड प्लस हाँ, तो आपने उल्टा कर दिया, वेयर यू अज्यूम्ड कि सब वाइट आई वाले को लिया और उसमें से मेल कितना ये निकाला. बट इफ यू लुक एट द वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल फ्रूट फ्लाइज दैट हैव white eyes? So male fruit flies is first condition and then second condition is having white eye. ठीक है? So it's only about that wording thing. Sorry. Next question number 3 देखो. I mean sad challenge question number 3 देखो. सर A3 था। ये 3 है आपके बुक में? यस सर ओके. तो फिर फोर्थ देखो, ये है क्या, poured concrete. यस सर ये फोर्थ है ना? हाँ. So let's do this one. Round to nearest whole number. Question is how many homes had foundation made from combination?
What happened? So one second. Sir, is it 6? 6. Okay. So ये जो क्वेश्चन 26. मार्क लगा है वो निकालना है ना? Yes, sir. So 26. 26. 1 minute. तो अब ये 4.5 ऑफ नॉन हिस्टोरिकल होम्स हैव कौन सा फाउंडेशन? फील्ड स्टोन एंड मोर्टार. ये 4.5% है. दिस पार्ट इज गिवन एज 4.5. 4.5 ऑफ नॉन हिस्टोरिकल्स. तो इसका 4.5 निकालना है. सो दिस विल बी 13.4. 13.4 का हाफ विल बी 6.7. 6.7 में से 0.5% गया. ये वैल्यू आ रहा है क्या? 6. इज दिस वैल्यू 6? Yes, sir. Yes, sir. ये 6 आया तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 and 110. इज इट? Yes, sir. अगर ये 110 हुआ तो ये भी 110 हो जाएगा. इफ दिस इज 110, दिस इज 203, तो ये हो गया 313. तो ये वैल्यू हो जाएगा 26. हाउ आई हैव गॉन इज यहां से ये वाला वैल्यू निकाला, फिर ये वैल्यू निकाला, फिर ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू निकाला, और यहां से ये वाला वैल्यू निकाला. यू गाइस कैन ऑल्सो गो, यहां से ये वाला वैल्यू निकालो, फिर ये वाला वैल्यू निकालो, फिर उससे ये वाला वैल्यू निकल जाए. आइदर वेज. ठीक है. आंसर इज 26. ओके, विल डू वन लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. ये हम करेंगे कौन सा? मेरे पास तो सारे प्रॉब्लम्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, आई गेस. डिड वी डू दिस वन? यस वी डिड, वी डिड. ये किया, ये किया. यस, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे गाइस. क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम योर बुक 24. ये करो 24. According to the information table given in this, which of the following conclusion can be drawn about per capita job growth? What do you mean by per capita? Per head. Per capita means per head. Job growth in top 5 states. कौन सा conclusion true है? Sorry. अच्छा, आदि. I will request you to read all 4. चारों ऑप्शंस पढ़ना प्लीज. आपने चारों ऑप्शन पढ़े हैं? Yes, sir. चलो तो फिर टेस्ट कर लेते हैं. आदि तो गायब हो गया कहीं, तो लेट्स टेस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस ओके. मैं ऑप्शन बी टेस्ट करता हूं क्योंकि आपने ए को बोला है. लेट्स टेस्ट बी. जॉब ग्रोथ वाज ग्रेटेस्ट इन टेक्सास. व्हाई? बिकॉज इट हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब एडेड. पहली बात तो ये ट्रू ही नहीं है. टोटल ग्रेटेस्ट टोटल नंबर टोटल जॉब्स एडेड है ही नहीं. वो तो कैलिफोर्निया का है, और जॉब ग्रोथ सिर्फ टोटल से नहीं निकाल सकते. तो
ये टेक्सास नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, सी करते हैं। जॉब ग्रोथ वाज लोएस्ट इन नॉर्थ डकोटा बिकॉज इट हैड फ्यूएस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब्स एडेड। नॉर्थ डकोटा में लोएस्ट जॉब ग्रोथ है बिकॉज इट हैड फ्यूएस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब्स एडेड। इज दैट ट्रू? यस, ये तो ट्रू है ना, दैट फ्यूएस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब्स एडेड। That is true. दैट इज ट्रू, बट इज जॉब ग्रोथ लोएस्ट? मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। ये तो ट्रू है। ओके, D, job growth was lowest in Colorado. Why? Because it had fewest number of jobs added per 10,000. नहीं, ये तो नहीं है। पर 10,000 तो कैलिफोर्निया में लोएस्ट है। सो आंसर बी और डी तो नहीं है। आदि, वी आर गोइंग बाय एलिमिनेटिंग। चाइना हैज सेड ए, तो तुम Sir, चले A. गए थे, तो हम यू आल्सो से ए। Yes, sir. अब हम ए और सी में आते हैं। तो देखो, जॉब ग्रोथ का मतलब ये होगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दे हैव, उस पे से ग्रोथ फैक्टर निकलेगा। एंड वो ग्रेटेस्ट या लोएस्ट उससे निकलना है। ग्रोथ कैन नॉट बी एब्सोल्युटली, हम नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट नंबर जिसका बड़ा है उसका जॉब ग्रोथ हाईएस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मुंबई हैज हायर पॉपुलेशन देन लेट्स से शिमला, बट जस्ट बिकॉज मुंबई इज हायर पॉपुलेशन देन शिमला, जरूरी नहीं है कि जितना जॉब ग्रोथ है मुंबई में वो होगा, इट विल ऑलवेज बी हायर देन शिमला। शिमला कुड बी एडिंग एब्सोल्यूट लेसर नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट जॉब ग्रोथ कुड बी हायर क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ही कम है। समझ में आ रहा है? तो बस उसी लॉजिक से चलते हैं। अब आते हैं सी पे। जॉब ग्रोथ वाज लोएस्ट इन नॉर्थ डकोटा बिकॉज इट हैड फ्यूएस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब। ओके गाइस, देखिए इसको करने का तरीका क्या है। अगर कन्वेंशनली जाना है तो कन्वेंशनली यू विल हैव टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ डकोटा एंड देन सी कितना जॉब ऐड हुआ, वो उसका जॉब ग्रोथ है। सिमिलरली फाइंड पॉपुलेशन ऑफ, दोनों ही नॉर्थ डकोटा है। ओ, दोनों ही नॉर्थ डकोटा है, दोनों ऑप्शंस में नॉर्थ डकोटा है, तो ये तो और भी अच्छा है। Then I don't have to compare. So was it greatest because it had greatest number, and was it lowest because it has fewest number of total jobs added? नहीं, अगर वो पर 10,000 हाईएस्ट जॉब ऐड कर रहा है तो फॉर श्योर जॉब ग्रोथ, बिकॉज नाउ आई एम कंपेयरिंग एवरीथिंग ओवर 10,000। मैं सब, इसका तो डिनोमिनेटर पॉपुलेशन से आएगा एंड दे विल हैव डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। एम आई मेकिंग सेंस? अगर मुझे एब्सोल्यूट जॉब्स एडेड को कंपेयर करना है, द डिनोमिनेटर विल बी देयर टोटल पॉपुलेशन which will be a different number. But if I am comparing them over every 10,000 people, then denominator is same. I can compare and very safely say that job growth was highest here because क्योंकि अब denominator सबका same हो गया, it makes answer right. So with this, we come down to end of chapter 8. Please mark my words. You guys are supposed to do 4 to 5 hours. अभी सब खत्म हो गया sign up. Can you focus on SAT now? Yes, sir, from Tuesday. हाँ, तो ट्यूसडे से उस पर फोकस करो। आदि, मेक श्योर तुम दिसंबर दे रहे हो। आदि, Yes, sir. make sure both of you are focusing on SAT maths, of course with English, and ensuring कि आप enough practice कर रहे हैं, at least 5 to 6 hours per day only for maths, और फिर English के लिए भी वैसे ही करना है। और इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो टू इम्प्रूव योर स्कोर। गो फॉर डाउट सॉल्विंग, हम आपके मॉक्स भी करेंगे, डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, बट आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। ओके, 19th we meet again and we conclude the maths का chapter 9 which is mean, median, mode, whisker plot, वो सब करेंगे 19th को मिलकर। Okay, so both of you have a good holiday season, have good Deepavali and see you on 19th. Okay, bye bye. So, when to register for the December exam? You have not registered yet? No, sir. मुझे लगता है लास्ट डेट 17th नवंबर है क्या, या क्या है? 17th है?
तो भैया प्लीज रजिस्टर, कल ही रजिस्टर करो श्रुति मैडम के साथ बैठ के, बिकॉज वो सेंटर जो आपको चाहिए फिर वो नहीं मिलेगा और कहीं दूर दराज जाके देना पड़ेगा एग्जाम को। कल श्रुति मैडम से गेट इन टच, आज उनका वीक ऑफ है, मैं भी उनको अभी टेक्स्ट कर दूंगा, एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है, डोंट वेट फॉर 17th। अभी ब्रांच वो सेंटर नहीं मिलेगा नहीं तो। तुम कहाँ जा रही हो साइना एग्जाम देने? तो कोई डॉन बॉस्को स्कूल है। मुंबई? मैंने So it's in माटुंगा में है। it's in अभी मुंबई Maharashtra. में कोई सेंटर ही नहीं है। अच्छा, हमने 2 हफ्ते पहले रजिस्टर किया था, नहीं 1 वीक पहले, एंड तब भी ऑलमोस्ट सब सेंटर्स बुक थे मुंबई देखो में। आदि ये क्या हो रहा है, पता चलेगा तुमको सूरत जाना पड़ेगा फिर ये एग्जाम देने, सूरत बड़ौदा, अगर मुंबई में नहीं मिला कल ही करना श्रुति मैडम के साथ बैठ के, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू गाइस।